Okay, let's go, guys. So this is, as you can see, intro to volatility trading. How many of you guys have actually heard of like volatility trading? क्या होता है भाई volatility trading? Volatility, implied vol तो सबने सुना है ना? IV सबने सुना है? RV किसी ने सुना है? Realized vol. किसने नहीं सुना realized vol के बारे में? IV सुना है, realized vol नहीं सुना. Right? चलो cool. So यार, the idea behind this session is I've been in the retail Indian trading landscape in the last 3 years, and what I've seen is that there's a lot of conversation about price action in options, right? मेरा जो background है is actually, let's move here. Okay, so this is my background. My background is in maths and quant research, quant trading, quant research, right? आगे बढ़ते हैं. तो क्या क्या किया हुआ है मैंने? How many of you guys have actually heard of सुना तो सबने होगा 2008 में मार्केट में क्या हो रहा था? किसको याद है? कोई बता सकता है क्या हो रहा था यार? लीमन ब्रदर क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही थी. दैट्स एग्जैक्टली राइट. लीमन ब्रदर्स 2009 में उड़ा था, 2008 में बेयर स्टर्न्स उड़ा था, एंड उस टाइम पे मैं शिकागो में ऑप्शंस बेच रहा था. तो लीमन में भी मैंने माल बेचा हुआ था, बेयर स्टर्न्स में भी मैंने माल बेचा हुआ था, मेरिल लिंच में भी मैंने माल बेचा हुआ था. None of these 3 firms exist today. And you guys can imagine if you're short volatility, short options, essentially, during that period, कितनी मार पड़ी मेरे को. Right? So, interestingly, another interesting trade we put on, जहाँ पे मुक्का पड़ा, right, was also Satyam Computers. किसको याद है? Who's been around? Quite a few people, right? तो Satyam Computers का American depository receipt, basically Satyam का share used to trade in the American markets. And American markets में guys अगर share list हो जाता है तो उस पे options जो है ना अगले दिन आ जाते हैं. तो Satyam पे हमको volatility sell का signal आया, because volatility it seemed was artificially elevated at that time. To us it seemed that way, right? तो हमने options बेचे, and अगले हफ्ते पता चला Satyam is an accounting fraud, right? तो उसमें भी बहुत मोटा लॉस खाया हमने, ठीक है. बट जिस ग्रुप के लिए मैं काम करता था, इट वाज एसेंशियली अ शॉर्ट वॉलेटिलिटी ग्रुप. इट वाज कॉल्ड द शिकागो वॉलेटिलिटी ग्रुप, एंड हमारा मैंडेट था कि यार वी हैव टू आइडेंटिफाई स्पाइक्स इन वॉलेटिलिटी एंड देन स्ट्रेटेजिकली टेक ट्रेड्स टू कैप्चर दो स्पाइक्स. हम प्राइस को देखते ही नहीं थे, ठीक है ना, हम सिर्फ वॉलेटिलिटी को देखते थे. तो मेरा गोल आज के सेशन में ये है, I want to show you guys a different way of looking at options. ठीक है ना? I want you guys to see options with a volatility lens, not with a price lens, not with a time-based lens. And मैं ये नहीं बोल रहा कि वो काम नहीं करता, वो absolutely काम करता है. मेरा पैसा लगा हुआ है उसमें मार्केट में, right? But this is a different way of looking at options, and the reason I want to explore this with a retail audience is because आजकल की डेट में there's a lot of conversation going on. आगे बढ़ते हैं थोड़ा. हाँ, सो ये नंबर सबको पता है, राइट? 9 out of 10 ट्रेडर्स सेबी का नंबर है, सबको पता है. यहाँ पे यार हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली इन द प्रॉफिटेबल कैटेगरी? 2, 3, 4. अब हाथ ऊपर होए. ठीक है, कूल. सो एंड अगेन लाइक there's nothing wrong in losing money in F&O. ठीक है ना? It's a hard game to play. And when I started trading as a retail trader, right? मेरा background है institutional trading करना. I have traded for institutions, different kinds of trading strategies I have run, right? Institutions की book मैंने चलाई है, but जब retail में आते हैं वो completely different game है. Retail में you're essentially trading against institutions, ठीक है ना? And or rather institutions are looking for you. They're like यार मैंने और institution के साथ नहीं trade करना, मेरे को retail flow लेके आओ. तो it's extremely hard to make money as a retail trader. Data आपके सामने है, हमने algo test पे कुछ कोशिश करी है, where essentially the idea being क्या, जो institution का process है, अगर हम वही expose कर दे retail के लिए, maybe retail will stand somewhere. And we're the only platform that actually shares this data openly, कि यार हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर सेबी बोलती है कि 10% ट्रेडर प्रॉफिटेबल है, हमारे प्लेटफॉर्म पे दैट नंबर वाज 45% फॉर दैट सेम पीरियड, राइट. एंड इसमें कुछ स्पेशल हमने नहीं किया, हमने कोई स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं दी है, हमने बस वो इंस्टीट्यूशनल का जो थॉट प्रोसेस है,
राइट, वो एक्सपोज कर दिया रिटेल को। एंड इंस्टीट्यूशन पैसा कमाता है, रिटेल पैसा गवाता है। आगे चलते हैं। दिस इज एन आर्टिकल फ्रॉम फिनशॉर्ट्स, ठीक है ना। इंडिविजुअल ट्रेडर्स लॉस्ट एक्स अमाउंट 61,000 crores, props and FIIs made this, seems like a zero sum game, right? आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एलिफेंट इन द रूम, घोस्ट, जो हम रिटेल के पीछे पड़ा हुआ है, राइट? यू ऑल हर्ड ऑफ जेन स्ट्रीट? किसने नहीं सुना? सबने सुना है, ठीक है ना। धमाकेदार पैसे कमा रहे हैं। तो मेरा एक और पर्पस आज का ये है, मैं वॉलेटिलिटी लेंस बोल रहा हूं। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये वॉलेटिलिटी लेंस से देखता है मार्केट को, ठीक है ना। तो अगर इसके साथ हमने कंपीट करना है, हम नहीं कंपीट कर सकते इसके साथ, बट अगर इसके साथ हमने को एग्जिस्ट करना है तो हमको पता होना चाहिए यार ये कैसे सोचता है मार्केट के बारे में। ही इज नॉट आवर एनिमी, ठीक है ना, बिकॉज इफ ही इज आवर एनिमी देन वी आर ऑलरेडी डेड। So we have to figure out a way to coexist with guys like these, and one way is to just educate ourselves कि यार how do these guys think about the markets, ठीक है ना। ये वो हमसे पैसा लेते हैं, यहाँ पे देते हैं पैसा। आगे चलते हैं। So यार I have 3 questions. The first question is of course like what does Jane Street do? Can I hear some guesses from the audience? How do they think about the market? अच्छा ये बताओ मेरे को, जेन स्ट्रीट ऑप्शन बायर है या ऑप्शन सेलर है? किसको लगता है बायर है? सिर्फ बायर है। किसको लगता है बायर है? ठीक है। किसको लगता है सिर्फ सेलर है? किसको लगता है दोनों करता है? हाँ, ठीक है। आपको क्या लगता है यार वो कौन कौन है यहाँ पे चार्ट्स यूज करते हैं? ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स कौन यूज करता है यहाँ पे? उस पर आप ट्रेंड लाइंस लगाते हैं, लेवल्स देखते हैं, राइट? आपको क्या लगता है जेन स्ट्रीट भी ये करता है? नहीं, राइट? There is, I can tell you, I can give you guys a guarantee that there is no technical analysis department at Jane Street, at Morgan Stanley, at JP Morgan, ठीक है ना। इसका ये मतलब नहीं है टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता। मैंने कभी टेक्निकल एनालिसिस किया नहीं है। मैं इंस्टीट्यूशंस के लिए जब काम करता था तो मेरे को पता भी नहीं था ट्रेडिंग व्यू नाम की कोई चीज़ होती है। 3 साल पहले मैंने जब एल्गो टेस्ट बनाया तब मैंने देखा अच्छा ट्रेडिंग व्यू नाम का भी कुछ है, राइट? एंड एसेंशियली दीज गाइज आर नॉट, यू नो, चार्ट खोल के नहीं बैठे ये लोग, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। तो व्हाट दीज गाइज आर डूइंग इज व्हाट आई से, दे आर लुकिंग एट द मार्केट विद अ वॉलेटिलिटी लेंस, ठीक है। दे आर लुकिंग एट okay, so before I actually go into what volatility trading is and start expressing this idea in terms of options and options prices, I want to make sure we all are on the same page about a couple of things, ठीक है ना। So as quant traders, these are 2 trading concepts that I want to make sure we all understand. The first one is यार when we are running a large book, we don't really care about accuracy. Win percentage does not matter to us in the long run. When we are picking strategies, yes, it is one of the many statistics that we look at, right? It is a characteristic of a trading strategy. But ऐसा नहीं है लोग मेरे को आके बोलते हैं मेरे को यार एक 90% विन रेट की स्ट्रैटेजी दे दे। आपके सामने एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना, जो बोलती है यार 99% विन रेट स्ट्रैटेजी है, 10 रुपए कमाती है 99% ऑफ द टाइम, 1 लाख रुपए लूज करती है दैट 1% ऑफ द टाइम। आपने 50 दिन लगातार ये स्ट्रैटेजी चलाई, हर रोज आपने 10 रुपए कमाए इनटू लॉट साइज, जो भी मेरा लॉट साइज है। आपको लगा भाई क्या सिस्टम है ये, इस पे तो भाई अब पोजीशन साइजिंग करते हैं, लेट्स लाइक डबल अप ट्रिपल अप, पैसा ही पैसा है इस पे तो। द रिस्क इज इन द टेल्स। हाउ मेनी ऑफ यू वुड एक्चुअली ट्रेड दिस? नो, राइट? सो व्हेन वी आर लुकिंग एट, सो दिस इज अ हाईली नेगेटिवली स्क्यूड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। व्हेन वी लुक एट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ऐसा नहीं है कि हम नेगेटिवली स्क्यूड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं अपनी बुक में। This has a negative skew, but it also has negative edge, right? So, negative skew but positive edge makes sense. But the concept here is that do not focus on win percentage. ठीक है ना? ये accuracy नाम की जो चीज़ है जो आप सुनते हो, if somebody is selling you a system and the first thing that they are saying is कि यार high accuracy system है, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि भाई risk is in the tails. ठीक है ना? मैं पैसा कमाऊंगा, अच्छा पैसा कमाऊंगा, but एक दिन ऐसा आएगा वो सारा ले जाएगा। Okay, so
the win percentage does not matter. What matters is in the long run, my average profit per trade. ठीक है ना? That is what matters. So we are quant traders. We are looking at trading from this perspective now. ठीक है ना? Every trading strategy needs to at least have positive edge. Long term में average profit per trade होना चाहिए उसका greater than 0. ठीक है जी? आगे चलते हैं. फिर आ जाता है यार. As quant traders, we don't really look at like the outcome of an individual trade and make decisions based on that. So यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है single trade P&L doesn't matter. The single trade का P&L more often than not is driven by luck. ठीक है? तो मैंने एक अपना इंटरनल सेशन लिया था अभी recently when I was teaching people volatility trading, and उसमें मैंने बोला यार I think 13th April was a Friday or something like that. मैंने बोला चल यार माल बेचते हैं, फ्राइडे है, विक्स 13 पे चल रहा था, एंड आई सोल्ड आयरन कॉन्डोर. मार्केट के क्लोज होते ही चाइना ने बोला जी हम रिवर्स टैरिफ लगा रहे हैं ट्रम्प जी पे. मंडे को मार्केट खुली एट 21-22 विक्स. ठीक है ना? मैंने एक लॉट बेचा था बस ऐसे ही इलस्ट्रेट करने के लिए, एंड आई कुडंट प्रेडिक्ट यार चाइना क्या करने वाला. ठीक है ना? मेरी स्ट्रैटेजी में मेरे हिसाब से एज था, मेरी स्ट्रैटेजी में जूस था जो मैं लॉन्ग रन में निकाल सकता था. ठीक है ना? लेकिन इट वाज जस्ट बैड लक. सेम थिंग फॉर पीपल हु आर वो निर्मला सीतारमन मैम का कैंडल आया था बैंक निफ्टी में, किसको याद है? ठीक है ना? किसने पैसे कमाए थे उस टाइम पे? हाँ, तो अब दैट वाज लक टू सम एक्सटेंट, राइट? हमें नहीं पता था ऐसा कुछ आने वाला, राइट? तो लक गोज बोथ वेज. शॉर्ट टर्म में योर P&L विल मोर ऑफन देन नॉट बी ड्रिवन बाय लक. यार मार्केट में क्या चल रहा है? लॉन्ग रन में दैट गुड लक एंड बैड लक विल इवन आउट, एंड यू विल बी लेफ्ट विद योर लॉन्ग टर्म P&L. इफ दैट्स ग्रेटर देन 0, देन लॉन्ग टर्म में आपका स्किल और एज आपका P&L ड्राइव करेगा. तो एज क्वांट ट्रेडर्स व्हाट वी डू इज वी डोंट लुक एट इंडिविजुअल ट्रेड्स, वी लुक एट एन एग्रीगेट ऑफ ट्रेड्स. अगर if you guys are familiar with algo test, we are a backtesting first platform, right? We started as a backtesting platform only. And backtesting में हम penalize नहीं करते यार, आपने अगर 10 साल का backtest करना है करो, मैं एक्स्ट्रा पैसे नहीं चार्ज करूंगा क्योंकि ज़्यादा डेटा आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाने की अपॉर्चुनिटी देगा. ठीक है ना? तो अभी भी whatever we are going to look at, we are going to run lots and lots of simulations right now. ठीक है ना? आगे चलते हैं. So ये हमारे दो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड नाउ लेट्स गेट टू द मीट, विच इज व्हाट इज वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग. So guys, I started this session by asking किस किसने IV का नाम सुना है, किस किसने RV का नाम सुना है, किसने दोनों का नाम सुना है. तो let's start with implied volatility. Can anyone tell me यार IV का मतलब क्या है? हाँ, so in a way it's like मार्केट इज एंटिसिपेटिंग हलचल, कि यार मार्केट तो वैसे बहुत चीज़ें एंटिसिपेट कर सकता है, या हमको लगता है मार्केट बहुत चीज़ें एंटिसिपेट कर रहा है. लाइक यू कैन प्रिडिक्ट मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा. वॉलेटिलिटी जस्ट मीन्स फ्लक्चुएशन, इट मीन्स हलचल. ठीक है? दिस इज नॉट द टेक्निकल डेफिनेशन ऑब्वियसली, बट implied volatility is the market's prediction कि यार फ्यूचर में कितनी मूवमेंट होने वाली है इंडेक्स में. ठीक है ना? तो लेट्स लुक एट निफ्टी का फ्रंट मंथ एट द मनी स्टैडल का IV चल रहा है फॉर एग्जांपल 15. ठीक है? तो वी इंटरप्रेट IV एज वी से 15% IV चल रही है मेरी. लेट्स से निफ्टी का फ्रंट मंथ ऑप्शन 30 डेज में एक्सपायर कर रहा है. It has a 15% volatility. So what that means is the market is predicting कि यार निफ्टी में इतनी अमाउंट ऑफ हलचल होनी है over the next 30 days. This is how volatile Nifty will be. 15% is the volatility of Nifty over the next 30 days. That is what the market is saying. ठीक है? Volatility का मतलब क्या है? It's like in a way you can think यार मार्केट डिफाइन कर रही है निफ्टी की रेंज with probabilities कि यार 60% ऑफ द टाइम इतनी रेंज रहेगी निफ्टी की. अगर मार्केट में IV आपका आता है 40%, तो मतलब रेंज बढ़ गई है. निफ्टी अभी फॉर एग्जांपल 20,000 पे है, IV 40% चल रही है, 22,000 से 18,000 हो गई रेंज एज एन एग्जांपल. IV कम है, रेंज कम हो गई है. तो मार्केट इन अ वे ये बोल रही है कि यार मेरे को लगता है निफ्टी की ये रेंज है. दैट इज व्हाट IV इज टेलिंग अस.
It is, remember guys, it is a prediction of the market. ठीक है? Now, like any prediction, it can either be right or wrong. ठीक है ना? And हमको कैसे पता लगता है यार ये मार्केट राइट थी या रॉन्ग थी? मेरे को बताओ, आज है सैटरडे, मेरी प्रिडिक्शन है मंडे को मार्केट खुलेगी 500 पॉइंट ऊपर. ठीक है, ये मेरी प्रिडिक्शन है. मेरे को कब पता लगेगा यार ये प्रिडिक्शन राइट है या रॉन्ग है? मंडे को पता लगेगा. ठीक है ना? फ्यूचर में पता लगेगा. तो फॉरवर्ड लुकिंग मैंने एक प्रिडिक्शन मेक कर दी. आईवी फॉरवर्ड लुकिंग है. आईवी बोलती है 30 डेज में, फ्रंट मंथ की आईवी बोलती है कि यार 30 डेज में इतनी हलचल होने वाली है, इतनी रेंज में रहेगा निफ्टी. ठीक है ना? तो 30 डेज के बाद मैं एक्चुअली देख सकता हूं कि यार कितनी हलचल हुई थी मार्केट में, कितनी एक्चुअल में फ्लक्चुएशन हुई थी मार्केट में. एंड दैट इज द रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी. ठीक है? तो आईवी इज द मार्केट्स प्रेडिक्शन, रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी इज टेलिंग यू कि एक्चुअली कितनी मूवमेंट हुई थी, एंड उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि मार्केट की प्रेडिक्शन राइट थी या रॉन्ग थी. ठीक है गाइस? आर यू गाइस ऑल विद मी? ऑसम. तो these are our two magic numbers and this is volatility trading 101. ठीक है ना? आप अगर कभी you join a company like Jane Street as an intern or whatever, right? The first thing they're going to do is they're going to give you a book by on volatility trading by Sheldon Nathanberg, and उसका पहला चैप्टर ये आपको बताता है कि भाई IV क्या है and realized volatility क्या है. ठीक है? They go into the maths and what it actually means, right? हमारा अभी का गोल है कि यार एक इंट्यूशन लेके जाए हम. आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द मैथ्स. आवर गोल इज जस्ट टू बिल्ड इंट्यूशन अबाउट दिस. सो वी अंडरस्टैंड नाउ दैट दीज टू मैजिक नंबर्स एग्जिस्ट, implied volatility and realized volatility. IV is the market's prediction. Realized volatility is what actually happened. And comparing, looking at both of these two numbers, we can tell how good the market's prediction actually was. Right? आगे चलते हैं. तो अब हमारे दो गोल्डन रूल्स आ रहे हैं जो इन दोनों नंबर्स का रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं और बताते हैं कि भाई ऑप्शन बायर पैसा कमाएगा या ऑप्शन सेलर पैसा कमाएगा. रूल नंबर 1, if the implied volatility is less than the realized volatility, so in this example, let's say the implied volatility in the market was 10%, but actually the realized volatility was 15%. मार्केट ने प्रेडिक्ट किया यार इतनी हलचल होनी है, बट एक्चुअली में उससे ज्यादा हलचल हो गई. ठीक है ना? उससे ज्यादा फ्लक्चुएशन हो गई अंडरलाइंग में. तो कौन पैसे कमाएगा, सेलर या बायर? बायर. ठीक है ना? ये यार ऑप्शन चेन यहां पे आपको दिख रहा है गाइस? क्लियर है? ऑप्शन चेन इज क्लियर. तो यहां पे हियर इज माय नंबर 11.5. लेट मी जूम इन अ लिटिल बिट. ज्यादा हो गया जूम. ओके, सो हियर इज माय नंबर 11.5 एट द मनी आईवी चल रही है. हम क्या करते हैं यार, हम एक सिंपल सी पोजीशन बनाते हैं. कौन सी पोजीशन है गाइस ये? What trading strategy is this? Long straddle, absolutely. And let's go to this Monte Carlo simulation tool. यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि यार आपसे पूछ रहा है वॉलेटिलिटी एस्टिमेट डाल. यहाँ पे हवर करते हैं तो बोलते हैं रियलाइज वॉलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग टिल द नियरेस्ट एक्सपायरी, जिसपे आपने ट्रेड लिया, विच इन दिस केस इज we've just bought a straddle expiring 33 days from now. The market is predicting an 11.5% volatility. We say कि एक्चुअल में मार्केट ने 15 की हलचल पे काम किया. अब इस पे मैं सिमुलेशंस रन करूंगा. मैं बोलूंगा यार, मैं लाइक वी सेड वी आर क्वांट ट्रेडर्स, राइट? A single trade P&L does not matter to us because a single trade P&L is driven by luck or can be driven by luck. ठीक है ना? तो अब मैंने क्या किया, मैंने रन 10,000 टाइम्स क्लिक किया, जिसका मतलब है मैंने 10,000 सिमुलेशंस रन करी. मैंने बोला यार मार्केट में कब कब ऐसा हुआ कि आईवी 11.5 थी, रियलाइज वॉल 15 थी, एंड मैंने ट्रेड्स ली. सो व्हाट you'll see is I don't always win. ठीक है ना? These are the trades where I lost money and these are the trades where I made money.
my average profit per trade is 15,000 एंड ऐसा भी हुआ है कि मेरे को 50,000 का फटका लगा है कि मेरा सारा प्रीमियम एक्सपायर कर गया, ठीक है ना. बट on average I have made money, and that comes from the fact that IV was less than realized volatility. ठीक है, just to illustrate the concept that my P&L, actually guys, my P&L only depends on this. मैं एक थोड़ी controversial statement make करूंगा. मैं बोलूंगा कि यार थीटा डीके हमको लगता है हम ऑप्शन बेचते हैं, थीटा डीके हम कमाते हैं. मैं बोलूंगा नहीं, थीटा डीके हम नहीं कमाते, हम एक्चुअली इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम कैप्चर करते हैं अगर हम पैसे कमाते हैं. ठीक है ना, मैं आपको दिखाता हूं कैसे. हमने रूल बनाया कि यार व्हेन आईवी इज लेस देन आरवी, उप्स आगे पहुंच गए ज्यादा. ठीक है ना, हमने एक रूल बनाया, इफ आईवी इज लेस देन आरवी देन इट्स गुड फॉर द ऑप्शन बायर. मैंने आपको एक सिचुएशन क्रिएट करके दी जहां पे मैंने बोला यार मैं 10,000 बारी यही ट्रेड लिया है, ठीक है ना, आईवी वाज लेस देन आरवी. समटाइम्स वी गॉट लकी, समटाइम्स वी गॉट रियली अनलकी. उसमें आपने देखा था कि एक ट्रेड थी मैंने 50,000 रुपए लूज करे, एक ट्रेड थी मैंने 3 लाख रुपए कमाए, राइट. बट एवरेज में मेरा पीएनएल था 15,000 रुपए, ठीक है ना, पर ट्रेड. सेम स्टोरी आ जाती है यहां पे. इफ आईवी इज ग्रेटर देन आरवी ऑन एवरेज, ठीक है ना, यहां पे एग्जांपल में दे रहा हूं. आईवी लाइक आई सेड इज द मार्केट प्रेडिक्शन. मार्केट ने प्रेडिक्ट किया कि भाई 20% की हलचल होने वाली है मार्केट में, ठीक है ना, बट एक्चुअली में सिर्फ 10% की हलचल हुई. तो इस टाइम पे ऑन एवरेज द सेलर विल मेक मनी. ठीक है, आई विल इलस्ट्रेट दैट अगेन ऑन द स्ट्रेटजी बिल्डर. Let's do that. Sorry guys, let's bring this back one last time. Then we'll move on to the slide deck completely. ठीक है, bother you guys one more time please. Perfect. Let's do this. So अभी हमने यार स्ट्रैडल खरीदा था, अब स्ट्रैडल बेच देते हैं, ठीक है ना. सेम मोंटे कार्लो टैब में आ जाते हैं. मैं पैसे कमाऊंगा या गवाऊंगा? गवाओगे. ये लो जी. इसको अगर मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको इलस्ट्रेट कराऊं तो अब यहां पे देखो, मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज 53%. माय एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन 50%, राइट. बट ऑन एवरेज आई एम स्टिल लूजिंग मनी. समटाइम्स आई एम गेटिंग रियली अनलकी, ठीक है ना. 2.55 का फटका लगा मेरे को यहां पे. तो माय पीएनएल इन द केस ऑफ बाइंग अ स्ट्रैडल एंड सेलिंग अ स्ट्रैडल, आई कैन लिटरली जस्ट, अब बताओ कमाऊंगा गवाऊंगा पैसे? दबा के कमाओगे. ये लो, एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड 26,000, ठीक है ना. आई गॉट अनलकी समटाइम्स, 96 का लॉस लगा मेरे को, ठीक है ना. मिनिमम M2M इज 96, बट ऑन एवरेज आई हैव मेड मनी, ठीक है ना. एंड द माइंड बॉगलिंग थिंग हियर इज, आई डोंट केयर यार मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ठीक है ना. वो मैं आपको बताता हूं. ये सबको पता है ना यार, सिंपल स्ट्रैटेजी है. कॉल खरीदी है मैंने, कॉल खरीदी है तो कब पैसे कमाती है यार? जब कॉल खरीदते हो तो. जोर से बोलो. मार्केट जब ऊपर जाती है, ठीक है ना, सबको ये पता है भाई मार्केट तेजी लग रही है, कॉल उठा लेते हैं. व्हाट इफ आई वर टू टेल यू कि द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज दिस, मैं कमाऊंगा गवाऊंगा? You lose money on average. Sometimes you will get insanely lucky. 1.28 आए मेरे यहां पे, उप्स, ठीक है जी. बट ऑन एवरेज यू आर गोइंग टू लूज मनी. सो अगर आप सिर्फ प्राइस को देख के माल उठा रहे हो, आप वॉलेटिलिटी नहीं देख रहे हो, ठीक है ना. यहां पे 11.5 की आईवी पे आपने माल उठाया एंड मे बी द मार्केट वेंट रियली रियली अप एंड यू गॉट वेरी वेरी लकी एंड यू मेड दिस मनी, ठीक है ना. बट इफ यू कीप डूइंग दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, लॉन्ग रन में आप पैसे लूज करोगे. इवन समथिंग दैट इज सो इनग्रेन्ड इन अस कि यार कॉल खरीद रहा हूं, मार्केट ऊपर जाएगी मैं पैसे कमाऊंगा. अगर आप यही चीज बार बार करते रहोगे और आप वॉलेटिलिटी को नहीं देखोगे कि यार किस आईवी पे आप कॉल को उठा रहे हो, ठीक है ना, देयर विल बी प्लेंटी ऑफ टाइम्स वेयर यू विल बी एबल टू गेट द डायरेक्शन राइट बट यू विल स्टिल लूज मनी. एंड ऑन एवरेज
इफ दिस इज द सिचुएशन कि यार आप जब भी माल खरीद रहे हो द आईवी इज ग्रेटर देन द सब्सिक्वेंट रियलाइज वॉलेटिलिटी, यू विल लूज मनी, यू विल लूज मनी. ठीक है, तो दिस इज, लेट्स गेट बैक टू द स्लाइड डेक गाइस. Same thing you guys can do with selling in simple naked option sell as well, right? My P&L, like the IV and the realized volatility and their relationship is a major driver of your P&L, guys. Okay? So now that we understand that, right? This is one of the many trades, or this is one of the many things that Jane Street looks at when they're deciding कि यार हमने माल खरीदना है बेचना है. ठीक है? Excuse me, कि यार if an option is cheap, they will buy. If an option is expensive, they will sell. And to determine whether the option is cheap or expensive, one of the things they look at is the relationship between the implied volatility and the realized volatility. Realized volatility आपने बोला यार backward looking है, तो वो क्या करते हैं, वो realized volatility को forecast करते हैं. उनका दे हैव मॉडल्स, और वी ऑल कैन यूज दीज मॉडल्स. ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के पास है मॉडल्स, काफी कमोडिटाइज मॉडल्स भी आपको मिल जाएंगे वेयर यू कैन एक्चुअली फोरकास्ट. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट द फोरकास्ट विल ऑलवेज बी एक्यूरेट, राइट? एक तो फोरकास्ट आपको फ्री में मिल ही रहा है. क्या फोरकास्ट मिल रहा है आपको फ्री में? आईवी. मार्केट आपको दे रही है एक फोरकास्ट, आप अग्री कर सकते हो मार्केट से या डिसएग्री कर सकते हो. आगे जाके आपको यार एक ट्रिक क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, अगर टाइम परमिट करता है. बट अभी के लिए ये मैंने क्या किया ना, मैंने निफ्टी की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एंड रियलाइज वॉलेटिलिटी एक साथ प्लॉट कर दी. तो आईवी है फॉरवर्ड प्रेडिक्टिंग, रियलाइज वॉल है कि एक्चुअल में क्या हुआ, एंड आई गॉट देम ऑल ऑन द सेम एक्सिस एंड आई प्लॉटेड देम टुगेदर. ठीक है? कैन यू गाइज टेल मी ये कौन सा पीरियड है? हाँ जी, कोविड. एग्जैक्टली, राइट. मैंने जानबूझ के यहाँ पे डेट नहीं डाली थी. सो दिस इज द कोविड पीरियड, एंड आई विल शो यू अ कपल मोर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द सेम डेटा. दिस इज द 30-day implied volatility. तो बेसिकली पोजिशनल ऑप्शन बाइंग या सेलिंग की स्ट्रैटेजी को मैंने इन अ वे सिमुलेट किया है. तो यहाँ पे ब्लू में है implied volatility, रेड में है रियलाइज volatility, एंड व्हाट you'll see is that pre-COVID there's periods of time, like small periods of time, when RV goes above IV, but most of the times IV is above RV. So IV is greater than RV. इसका क्या मतलब है? Was the period before COVID, period starting from here to there, was it on average better for option sellers or option buyers? Exactly. फिर भैया यहां पे मार्केट की प्रेडिक्शन इतनी गलत निकली, जो माल बेच के बैठा था उसको मार खानी ही पड़ी. ठीक है ना? there's no two ways about it. Realized wall spiked up like there's no tomorrow, then implied wall caught up. ठीक है? and this period was, किसने पैसा कमाया इस पीरियड में? ऑप्शन सेलर्स, राइट? as wall started coming down over time, drifting down, great period for option sellers. ठीक है ना? Market stopped moving as much as Nifty stopped moving as much as the options thought they were going to move. Panic scenario, right? So let's look at another representation of this data. यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बस IV minus RV डाल दिया. This is like one representation of what is known as the volatility risk premium or the VRP. ठीक है guys? इसको हम रिस्क प्रीमियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यार सबको, वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस इज कॉल्ड अ रिस्क प्रीमियम इज व्हेन यू सेल एन ऑप्शन देयर आर चांसेस ऑफ अनलिमिटेड लॉस, राइट? हमने शॉर्ट स्ट्रैडल का देखा, ऐसा पे ऑफ था, स्टॉक गोज टू जीरो, यू लूज अ लॉट ऑफ मनी, स्टॉक गेट्स टेकन ओवर. यूएस में टेक ओवर्स होते हैं, यहाँ पे इतने नहीं होते. स्टॉक गेट्स टेकन ओवर, यू लूज अ लॉट ऑफ मनी, राइट? मैंने जब सत्यम में ऑप्शंस बेचे थे, we were short a straddle and we lost a lot of money. Essentially stock went to zero. So you are taking more risk than the option buyer in terms of the magnitude of loss
that can incur, right, as an option seller. Now, if I'm 10 minutes, sure. If I am taking more risk as an option seller, why would I do that? I will only do it if I'm compensated for taking that extra amount of risk. And that is called that volatility risk premium. भाई risk ले रहा हूं, मेरे को premium चाहिए, ठीक है ना, over and above what the fair value is, over and above what the actuarial fair value is of selling that particular option and taking that risk. And that is the volatility risk premium. And what you can see here is, guys, the volatility risk premium has certain behaviors. It fluctuates, first of all. ठीक है ना? There are times when it can get really, really negative, and there are times when it can get really, really positive. Let's summarize this in the table next. So this is, just look at it for a minute, guys. कोई मेरे को बताएगा क्या हो रहा है यहाँ पे? Anyone? सेम डेटा की रिप्रेजेंटेशन है गाइस. तो क्या किया? आई थिंक दिस इज डेटा अंटिल लाइक 2023. उसके बाद फिर मैंने टूल ही बना दिया था. आई स्टॉप डूइंग दिस एनालिसिस इन एक्सेल. तो क्या है, लिटरली फ्रॉम लाइक दिस इज द 10-year पीरियड और लाइक आई थिंक द 7-year पीरियड 2017 से लेके 2023 के निफ्टी का डेटा है. एंड उसमें क्या है, निफ्टी की जो आईवी थी एट द मनी 30-day आईवी ranged from 88.31 all the way to 106. ठीक है, that's the range of the IV. And what I've done is I've created deciles where I've said कि यार हर रो में ना मैंने same amount of data points डाल दिए हैं. 100 दिन ऐसे थे उस पीरियड में जहां पे IV was between these two numbers. 100 दिन ऐसे थे जहां पे IV was between these two numbers. ठीक है, so let's look at this period when IV was between 11.27 and 12.15. The average IV was 11.72 and the average realized vol, the average subsequent realized vol was 12.23. ठीक है, तो everybody understands what's happening in this table? किसी को समझ नहीं आया बताना. ओके, तो इसमें क्या लग रहा है गाइस, ऑप्शन बेचने चाहिए खरीदने चाहिए? On average, guys, no matter what the range of volatility is, no matter where IV is, IV हमको market दे रही है, no matter where IV is, on average the IV tends to be less than or tends to be greater than the realized volatility. So मेरा जो risk premium है वो positive है. ठीक है ना? There are some, एक period है यहाँ वाला, या एक period नहीं बोलूँगा, एक range है of IVs where this is negative premium. But for the most part, you can see that the risk premium existed, right? I'm saying existed because this is not current data. But the concept of risk premium is just this. So on average, if you would have been able to manage the risk of selling options, technically you should have made money. ठीक है? So risk premium है, आप risk ले रहे हो, उसके लिए आपको कॉम्पनसेट होना है, लेकिन प्रीमियम के होने से ये मतलब नहीं है कि आप पैसे कमा पाओगे. बिकॉज यू आर टेकिंग रिस्क, यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर टेकिंग रिस्क एंड देन यू हैव टू मैनेज दैट रिस्क. ठीक है ना? ओनली देन विल यू बी एबल टू हार्नेस दैट दिस पर्टिकुलर रिस्क प्रीमियम. जस्ट द फैक्ट दैट द रिस्क प्रीमियम एग्जिस्ट डज नॉट मीन कि भाई फ्री का पैसा है. ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट गाइज. दिस इज हाउ एक्चुअली इंस्टीट्यूशंस लुक एट ऑप्शंस. They look at options with a volatility lens. There are other ways in which they determine whether options are cheap or expensive, but this is a very fundamental way where institutions decide कि यार माल सस्ता है या महंगा है. ठीक है, तो let's do a recap here, guys. What have we learned? हमने लर्न किया यार एज अ बिल्डिंग ब्लॉक कि यार मैं हाई एक्यूरेसी पे नहीं वो करूंगा, अरे हाई एक्यूरेसी दे दो मेरे को, नहीं. ठीक है ना? विन परसेंटेज डज नॉट मैटर इन द लॉन्ग रन. ठीक है, इट्स जस्ट वन ऑफ द मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. My single trade P&L is driven by luck.
in the long run, good luck and bad luck will even out. And what I'll be left with is whether I had edge in my trading system. ठीक है? हमने ये learn किया कि यार IV क्या होती है? What is implied volatility? Is the market's prediction कि कितनी हलचल होने वाली है over the life of the option. हर option की एक IV होती है और हर option की price के basis पे एक prediction मिल रही होती है हमको कि भाई कितनी हलचल होने वाली है. Realized vol हमको आगे जाके बताता है कि भाई कितनी हलचल हुई थी. ठीक है? फिर if IV is less than RV, who will make money on average? Buyers. If IV is greater than RV, who will make money on average? Sellers. And that is the session, guys. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.